Assalamualaikum students, how are you all? Welcome back after the Eid holidays. Okay, so today we are starting our new chapter, unit number 8, work, power and energy. This chapter has question answers, derivation, numericals and objectives. In today's lecture, we will be focusing on question answers and objectives. Okay, so normally if we say what is mean by work, so that is whenever any kind of action is performed, the work is said to be done. Okay, जो भी हम मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो हम सिंपली उसको कहते हैं कि यहाँ पे वर्किंग हो रही है. बट इन टर्म्स ऑफ साइंस वर्क इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. Work is assumed as when force is applied on object or body and that force is responsible for the displacement of that object. जिस पे फोर्स अप्लाई हुई उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट में पोजीशन में जो चेंज आया है दैट इज़ वर्क. हियर इज़ द लास्ट लाइन विच स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड मीन्स द क्वांटिटी, मीन्स फोर्स की जो क्वांटिटी यूज़ हुई है और जो डिस्टेंस बॉडी ने अचीव किया है. वर्क इन दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट. वर्क इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वी कैन डिफाइन मैथमेटिकली as W is equals to F into D displacement and when are specified with the direction. जब मतलब कोई भी हमें डायरेक्शन भी गिवन है तो ऐसे केस में जो फार्मूला होता है वो मॉडिफाई हो जाता है और उसमें एंगल भी इंक्लूड हो जाता है. Now see how the directions of force and movements are affected. Whenever they have same directions, work will be done. Otherwise, it is considered as zero working. Just like in second case, where we have opposite directions of force and movement. So here, no working is being done. Okay, let's understand types of work with this figure. Here in the first case, force has upward direction while movement is done in the right direction. And they both are making perpendicular strategy. So in this case, we can say that work is zero because direction is not same, right? See the second case, here force and movements both are in right direction. So work is done and it's said to be a positive work. हर वो वर्क पॉजिटिव टाइप्स पे आएगा जिसमें फोर्स और मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी. ठीक है, यानी कि अगर जैसे यहाँ पे दोनों राइट हैं पर कोई ऐसा केस हो कि जिसमें दोनों की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट है या दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, तो जब भी डायरेक्शन सेम होगी तो उस वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं. Okay, in the last case we have totally opposite directions of force and movement. So such case of work is known as negative work. Direction opposite पे negative work कहलाएगा. Okay, here is your question number 1, the definition of work. In the formula part you can see the term cos theta. Right now आपको cos का इतना idea नहीं है as you are not familiar with the trigonometry. तो अभी इतना समझ लें like it's a ratio that represents an angle, right? Later in chapter number 5 I will explain you what are sine and cos ratios actually. Then we have unit of work is Newton meter, which is also called joule. Now the definition of joule, as it's the unit, so we define it as according to the definition of work for one time. ठीक है, मतलब एक यूनिट क्वांटिटी की तहत हमने उसको डिफाइन कर दिया. लाइक है 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. जैसे जैसे जूल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी डेफिनेटली वो उतने ही न्यूटन मीटर्स के इक्वल हो जाएगा, राइट. Okay, now kinds of work. Here we have that positive, negative, zero work done. See here I have used cos 0 and in the next step I just put 1 instead of cos 0. Basically it is the value of cos 0. आप कैलकुलेटर से देखिएगा जब आप cos का फंक्शन प्रेस करेंगे और उसके बाद 0 प्रेस करेंगे सो इट विल गिव यू 1 इन अ रिज़ल्ट. ठीक, अच्छा 0 यहाँ पे इसलिए पुट किया है क्योंकि देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है. ठीक है, तो डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या है कि उनके दरमियान आपस में कोई एंगल प्लॉट नहीं हो रहा. ठीक, जो फोर्स का एंगल है वही डायरेक्शन वही आपका जो है वो मूवमेंट का या डिस्प्लेसमेंट का भी एंगल है. तो ऐसे केस में आपके पास इन दोनों के बीच में कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा तो हमने यहाँ पे कॉस को 0 पुट करना है. ठीक है, 0 इंडिकेट्स दैट देयर इज़ नो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो cos 0 आपका आएगा 1. ठीक है, और 1 जब F और D से मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट में हमें W इज इक्वल्स टू FD मिला, राइट. Now negative work in which the directions are opposite as we had discussed in the figure. So opposite direction means the angle between them is 180 degree.
So here we have to put cos 180, which is equals to -1. So final result is also a -1. It is -1. Now zero work means the directions are perpendicular, that is angle must be 90 degree here. So cos 90 equals to 0. So whole result became 0. ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से इन वैल्यूज़ को पुट करके देखिएगा, आपको यही आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, कॉज का फंक्शन प्रेस कीजिएगा, 90 प्रेस कीजिएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ज़ीरो फॉर्म में आएगा। सही। सो इट्स द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ ज़ीरो वर्क डन। ओके, इन टाइप्स ऑफ वर्क let's explain in the practical form. Positive work means just like you are displacing some object from one point to another. कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा रहे हैं, तो ये क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है उसी में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो इट इज़ पॉजिटिव वर्किंग। Negative work means you are on the ladder steps and displacing something from first floor to say top floor. So here you are working against the gravity, right? ग्रेविटी मीन्स जो हमारी अर्थ की फ़ोर्स है, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है, तो एक हाइट अचीव कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। सही। इसलिए शायद आपने फील किया हो कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो चढ़ने के बाद हमें ज़्यादा जो है वो थकन का एहसास होता है एज़ कम्पेयर टू आवर नॉर्मल मूवमेंट। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो फोर्स है वो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। ठीक है, यानी कि जो हमारी ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई हो रही है। सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द नेगेटिव वर्क। ज़ीरो वर्क मीन्स आपके हाथ में कोई सामान है और आप उसको होल्ड किए हुए हो पर मूवमेंट नहीं कर रहे, मतलब आप एक जगह पे खड़े हुए हो, कोई कोई सामान पकड़ा हुआ है आपने, तो ऐसे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट पे वर्क डन नहीं हो रहा, सो इट इज़ ज़ीरो वर्क डन। Or you can say you are sitting somewhere and doing some writing or learning. Here you are not displacing, you are not moving, right? So in this case work done is 0.